नाती तोती संबही, नाती तोती संबही, सुती आएन चिंद, सुती आएन चिंद, फरीदा रही सुबेड़ी हिंग दी, रही सुबेड़ी हिंग दी, गई कथूरी गंध, गई कथूरी गंध। प्यारी साध संगत जी, असी जो लड़ीवार फरीद जी के श्लोक समझ रहे हैं, एक गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। कई दफ़ा संगतां सानू ये सवाल भी पुछदियां ने कि यह गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया है। असी एक जगह प्रोग्राम किया सी, उत्थे शब्द पढ़िया सी, चढ़ के घोड़ड़े कुंदे पकड़े खुंडी दी खिडारी। जदों असी इसनूं गायन कर रहे सी ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਘੋੜੜੇ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜੇ ਖੁੰਡੀ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਤੀਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਗਈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਪੈਰਦਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪਾਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੱਬ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਟਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਸਿੱਖਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਗੁਣ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖਿਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਆਇਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮਾਰੇ में बताया गया वही तुम्हारे में बताया गया, सब धर्म एक बराबर होते हैं। साडा बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। सारे मनुख बराबर होते हैं, सारे इंसान रब जी दे बंदे ने, पर धर्म बराबर नहीं होते हैं।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਫਲਸਫੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਵਿੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਬਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਔਰ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਢੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਔਰ ਮਤ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਮਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਖਸਮਾ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਤ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਵਨਨੈਸ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਅਬਾਈਡ ਅਲਾਈਨਡ ਵਿਦ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਡਿਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਟੁਰਨਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਟੁਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ। ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਮੀਨਸ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਟਿਊਨਡ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ है। लोग आप ही सवाल करते हैं, वीर जी गुरुद्वारे हम जाते हैं तो वहाँ पर तो हम शरीफ हो जाते हैं, बाहर आते हैं तो हम फिर क्यों बिगड़ जाते हैं।
वीर जी हम जब पाठ करते हैं पर मौके के टाइम पे हम थिड़क के हो जाते हैं, एग्ज़ाम में हम फेल क्यों हो जाते हैं? वीर जी अगर हम शमशान घाट में जाते हैं वहाँ पर हम शरीफ हो जाते हैं, बाहर आके हम फिर क्यों ऐसे बदल जाते हैं? वो असी जीओ मैले बाहरों निर्मल वाला डुअलिटी वाला जीवन जीते हैं। मीनस सारा कुछ ट्यून्ड नहीं है, भगत अवस्था विच नहीं है। अज न सुती कंस्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जदों असी भगत अवस्था च नहीं होंदे हाँ, सच दे नाल मत नहीं जुड़ी है, कंत मन है, इस शरीर का मालक कौन है? मन। साध संगत जी ये गल याद रखनी है, हमेशा साडे शरीर का चालक साडा मन होंदा है। जेकर मन सतगुर की मत लै लवे, रब जी की मत लैके इस शरीर को चलाए तां भी चलाएगा मन। तो जेकर मन सतगुर की मत लैके चलाएगा तो साडा जीवन, साडा करैक्टर, साडा किरदार अच्छा बनेगा। पर जे मन सतगुर की मत ना लवे तां भी चलाएगा साडा मन, पर साडा किरदार गिर जाएगा, साडा जीवन का म्यार करैक्टर साडा डिग जाएगा, असी चंगा जीवन नहीं जियांगे। सो पिछले उस श्लोक कह रहे सन, अज न सुती कंस्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, साडे सारे अंग सच तो मुनकर हो जाते हैं। अज न सुती कंस्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पूछो डुहागणी, डुहागणी कौन होंदा है? जिस इंसान की मत डुअलिटी च जींदी है और सच के नाल जीवन नहीं जीती। सुहागन होंदी है जो रब जी के गुणों के नाल जींदा इंसान, उसकी मत सुहागन हो जाती है। असी सुहागन कदों होंदे हैं? भावें इस्त्री, भावें मर्द, भावें मुंडा, भावें कुड़ी, भावें जिंदगी का जिस मर्जी उम्र के पड़ाव च होइए, जदों साडी मत सच दे नाल मिल के जुड़ के चलती है, उस अवस्था नूं सुहागन कहते हैं। तो जदों असी उस दे नाल मिल के नहीं चलते हैं, उस तो उल्टा चलते हैं, डुअलिटी विच दुबदा विच जी के चलते हैं, तो उस अवस्था नूं कहते हैं दुहागन। दुहागन दुबदा, दुबदा में चलने वाला, दुबदा मीन्स डुअलिटी च रहने वाला इंसान, कोई भी मनुख उन्होंने दुहागन अवस्था च कहते हैं। जाए पूछो दुहागनी तुम क्यों रहने आए, तुहाडी जिंदगी किवें बीतदी है? ਇਹਦਾ मतलब सानू समझाया जा रहा है कि जेकर सच दे नाल ना जुड़ो तो जिंदगी ठीक नहीं बीतेगी। ये गल वखरी है कि असी कबूतर बिल्ली नू देख के अखां बंद करके जी रहा, अवेसला जी रहा, इग्नोरेंट होके जी रहा, अपना सुभाव चेंज नहीं करना चाहता। जो जो साडी उम्र वधदी जाती है, साडे सुभाव दे मंदे ख्याल पकदे जाते हैं। असी इसनूं बड़ी वारी पढ़ चुके हैं। कबीर टाले टोले दिन गया, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न व्याज बढ़न तो जाए, ना हर पज्यो ना खत फट्यो, काल पहुँच्यो आए, काल पहुँच्यो आए, कबीर टाले टोले दिन गया, व्याज बढ़न जाए। व्याज जदों तू सच नूं टालदा है, सच नूं असीं क्यों टालदे हां कि मैनूं मेरा सुभाव बदलना ना पवे। पहली गल तो असीं सच सुनना ही नहीं चाहते। सुनना क्यों नहीं चाहते हाँ कि मैनू बदलना पेगा, लेकिन सुनन तो बाद भी मक्कर मार जाते हाँ
कि मैं बदलना चाहता ही नहीं हाँ, ਉਹਨੂੰ मैं ना मानू कहते ने, स्टबन कहते ने, ढीठ कहते ने। उस वेले असी गधे की अवस्था च होंदे। गधा, खोता, डंकी स्टबन होंदा है ना, उस वेले असी गधे की जून में होंदे हाँ, देखने च इंसान लगते हैं। कबीर टाला टोला दिन गया व्याज बढ़न तो जाए। व्याज किस चीज़ का बढ़ता है? साडे अवगुणां दा, साडे मंदे ख्यालों दियां आदतां दा। वो बदलना ना पवे तो मैं टालदा रहिंदा। ना हर भजियो, ना मैं सच नूं समझिया, ना खत फटियो। मेरे भैड़े ख्यालों का खाता खत्म ही नहीं होंदा, दिनों दिन वधदा है। एक बारी मैं एग्जाम्पल दे चुका होया कि जदों बचपन ही निक्का बच्चा गालां कढ़दा है या आस पास किसी नूं गालां कढ़दा देखदा है, उन्होंने निक्की निक्की आदत पैंदी रहिंदी है। जे उहदियां आदतां नूं कोई ना सवारे, वो वड्डा होके जरूर गालां कढ़ेगा। पहलां उन्होंने एक आंदी सी, हुण उन्होंने 4 आंदियां, वड्डे होके उन्होंने बहुत सारियां आंदियां, और वो गालां मौके सिर मूँह तो निकल ही जांदियां ने, क्योंकि उहदा व्याज वध गया, उहदी बैड हैबिट सामने आ गई। असी बोलण तो ही नशर होंदे आ कि असी किस किस्म दे, किस अकल दे, किस धार्मिकता तक दे असी इंसान हाँ, पता उहदे तो ही लगदा है। ना हर भजियो, ना खत फटियो, काल पहुँचियो आए। सो असी पिछला श्लोक समझ रहे हाँ, अज ना सुती कंस्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछो डुआगणी तुम क्यों रैण विहाए। इस तो बाद असी अगला श्लोक पढ़िया। इस तो अगला श्लोक सी, साहुरे टोई नाल है, साहुरे टोई नाल है, पिए नाही था पिए नाही था साहुरे टोई नाल है, साहुरे टोई नाल है। पिरवातड़ी ना पुछई, पिरवातड़ी ना पुछई, तन सुहागण ना, तन सुहागण ना, साहुरे टोई नाल है, साहुरे टोई नाल। हुण जो दुहागन है, असी सारे मनुख जदों डुअलिटी च जींदे हाँ, सच दा पल्ला छड्ड दिंदे हाँ, कदे शरीफ हो जाते हाँ, कदे पुट्ठे राह ते टुर पैंदे हाँ, साडी उस अवस्था नूं दुहागन कहंदे ने। जदों असी सच सिੱਖਦੇ नहीं हाँ, दोबारा मैं इसनूं फ्रेज करदा, जदों असी बचपन विच अपने घर विच कुछ सिੱਖਦੇ हाँ, जिंदगी दी किसी भी उम्र तक जदों सिੱਖਦੇ रहंदे हाँ, लर्नर, साडी सिੱਖਣ ਦੀ अवस्था नूं गुरबाणी विच पेका घर दी अवस्था कहंदे ने। पेके दी अवस्था साडी बाहर तुहानूं टेप मिलेगी, CD मिलेगी, पेके सौरे सैमीनार असी कीता सी। पेके दी अवस्था जदों असी सच सिੱਖਦੇ हाँ, जदों सच सीख के अपने जीवन विच उहनूं प्रैक्टिस करते हाँ, उस अवस्था नूं सौरे घर दी अवस्था कहंदे हन। सो पेका सौरा सिर्फ इस्त्री वास्ते गल नहीं चल रही।
पेका सहुरा साडे सारिਆਂ वास्ते, ਅਸੀਂ जिस मर्जी उम्र ਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਈ ਚੰਗੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਵਰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੱਚੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਕੁਕਿੰਗ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ। ਮਾਨੋ ਨੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਕਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇਗੀ, ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹੇਗੀ। ਮਨੁੱਖੀਮਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਕੇ ਘਰ ਇੰਝ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸੱਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ है, मैंने ऐसे हर टाइम घर में नहीं रहना, मैंने अपनी सास की सेवा नहीं करनी, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੇਕੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਹਨ ਪੇਕਾ ਘਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਵਿਦ ਗੋਡ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਪਈਏ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਜਿਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਪਈਏ ਨਾਹੀ ਥਾਉ, ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਈਏ ਨਾਹੀ ਥਾਉ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੁਰੇ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ ਪਈਏ ਨਾਹੀ ਥਾਉ, ਪਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਪਿਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਹੋ। ਸੁਹਾਗਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਸੁਹਾਗਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ,
ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੇਲੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੱਸ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਤ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸਮਝਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਨ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਹਾਗਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੰਤ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋग ऐसे हैं ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ धर्म कर्म की क्या ज़रूरत है, मन साफ होना चाहिए, पर उन्होंने पता ही नहीं है कि मन साफ कैसे होता है। उन्होंने वास्ते डांस करना मन साफ है, उन्होंने वास्ते रात के 3 बजे तक शराबा पीना मन साफ है, उन्होंने वास्ते दाज ले लेना, दाज दे देना मन साफ है, उन्होंने वास्ते इस्त्री नूं बराबरता ना देना, इस्त्री नूं डोरमैट बना के डोमीनेट करना मन साफ है। उन्होंने वास्ते शराबा पीना और शराबा दियाँ पार्टियां करते रहना मन साफ है। जात पात के चक्करां च पए रहना उन्हां दा मन साफ है। पर की इन्हां गल्लां नूं मन साफ कहंदे ने? नहीं। इहदा मतलब मनमुख भगत करे बिन सतगुर मुख भगत ना होई। तुम सोचते हो कि हम सतगुर के बिना जी सकते हैं, लेकिन सतगुर के बिना जीना मुश्किल है, जीना असंभव है। हर बिन जियो जल बल जाऊँ, मैं अपना गुर पूछ देखा अवर नहीं थाऊँ। तू सतगुर दी मत ले बिना जी रहे हैं ना, जिथे मर्जी चला जा तू जी नहीं सकता। तू ढंग नाल ही सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोई। लोकी इसनूं जीवन समझते हैं। मत कोई जाने जग जीवदा दूजे भाए मुयास, इनू जीवन नहीं कहते हैं। जे तू सतगुर बिना विजडम बिना जी रहा है। इस तो बाद असी अगला श्लोक ये नाल पढ़िया, सौरै पईए कंत की। कंत कौन है? साडी सारी दुनिया में मशहूर है रब जी। रब जी अंदर वसते ने। मेरे शरीर का कंत मन है। मन जो रब जी की मत लै लैंदा है तो गॉडली क्वालिटी वाला कंत बन जाता है। सौरै पईए कंत की, कंत अगम अथा। रब जी कोल बेअंत गुण हैं। भाव मेरा मन जो रब जी दे नाल इकमिक हो जाए तो ये कोल बेअंत गुण हैं, तो उस वेले मत सौरे पईए भाव सीखती भी जाती है और प्रैक्टिस भी करती रहती है। नानक सो सुहागणी वो सुहागन हो जाती है। जो भाव है बेपरवाह, ਉਹਦਾ मन बेपरवाह हो जाता है। बेपरवाह का मतलब की होता है? चिंता रहत हो जाता है, फियरलैस हो जाता है। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याय जी तिनका भौ सब गवासी। सोए चिंता जाग चिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू वर्तनता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। कौन नानक गुरु मंत्र दिड़ाया, उन्होंने एक गल जीवन जात समझ आ जाती है कि निरभौ किवें रहिंदे ने। उन्होंने सारे दुनिया के डर दूर हो जाते। निरभौ जपै सगल भौ मिटे वाली अवस्था बन जाती है। नानक सो सुहागणी जो भाव है बेपरवाह। साध संगत जी ये पंक्ति भी याद रखनी है असनी। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विकसै वे परवाह। पर उच्चारण करने वाले जे ग्रामर का ध्यान ना रखन तो उच्चारण करते हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो। ये कोई अखर नहीं है,
ये अर्थ भी नहीं बने। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, राहो दे हाहे नूं उपर औंकड़ लगती है, पर इत्थे राहे दे हाहे नूं होड़ा नहीं है, राहे दे हाहे नूं औंकड़ लगी हुई है। औंकड़ उचारण नहीं होएगी, राह सिंगुलर होंदा है, राहो कोई अखर नहीं होंदा। ये सानू उच्चारण का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना असी उच्चारण और ग्रामर का विचार करांगे उतना सानू अर्थां दे नेड़े जाण की आदत बनेगी। जितना अर्थां दे नेड़े जा पावांगे उतना भावार्थ समझ आएंगे, और जितना भावार्थ समझ आएंगे उतना अपने ते अप्लाई कर पावांगे, वरना अप्लाई ही नहीं कर पावांगे। जे असी रोज़ सुनते हाँ, जे कोई पढ़े सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठिया सोईए सब सबना दा वेसाहो। वेसाहो कोई लफज नहीं है, विसा। सो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, शुद्ध उच्चारण है सिर शाहां दे शाह। वो तो हाए दी औंकड़ उच्चारण नहीं होएगी, और सिंगुलर वास्ते किया गया। जपजी च पढ़दे सो पातशाह शाहां पत साहिब नानक रहन रजाई। एवं मैं 101 जपजी साहब कर ला, सो पातशाह हो शाह पात साहिब, इस तरीके नाल पढ़ा तो गलत हो जाएगा। असी शुद्ध उच्चारण भी करना है। सो असी पढ़ांगे सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोई है सबना दा वेसा। सो अज असी एक लफज पढ़ रहे हैं जो भाव है बेपरवाह। पहली गल, रब जी बेपरवाह ने, रब जी चिंता रहत ने। असी चिंता रहत वाले बेपरवाह रब जी दे नाल जदों इकमिक हो जाते हैं, साडा मन बेपरवाह हो जाता है। मत बेपरवाह मन दे नाल जुड़ गई, वो सुहागण हो गई। जे असी चिंता विच हाँ, जे असी फिकर विच हाँ, जे सानू किसी भी किस्म का डर है, तो मानो असी बेपरवाह नाल जुड़े नहीं, मानो असी बेपरवाह नहीं होए। सानू दिन रात कितने किस्म दी चिंतावां सतांदियां रहिंदियां ने। असी बारों बारों पाठ कर लेंदे हां, बारों बारों राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरू वाहिगुरू कर लेंदे हां, पर अंदर असी डरदे भी रहंदे हां, अंदर सानू चिंता भी लगी रहंदी है। साडा सुभाव ही होरां वांगू ही होंदा, जिन्हां ने राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरू नहीं कीता, साडा सुभाव उन्हां वांगू ही है। जे साडा काम क्रोध लोभ अहंकार उन्हां वांगू ही रहा। मैं पहला भी ये गल सांझ की सी, असी आस्तिक नास्तिक सैमीनार कीता सी। आस्तिक सैमीनार और नास्तिक सैमीनार डिस्कस किया सी। आस्तिक किसको बोलते हैं? दुनिया में नोशन है, मशहूर है कि जो भगवान को मानता है, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाता है, सुबह उठ जाता है, ठंडे पानी से नहाता है, नंगे पैर जाता है, माला फेरता है, मेडिटेशन करता है, फलाने वाला पाठ करता है, उसको आस्तिक बोलते हैं। दुनिया इनू ही आस्तिक कहती है। अच्छा, दुनिया को पूछते हैं नास्तिक किसको बोलते हैं? दुनिया कहती जो भगवान को नहीं मानता, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता, जो पाठ नहीं करता, जो माला नहीं फेरता, जो भगवान का नाम नहीं लेता, वो नास्तिक है। पर साध संगत जी, विचारना ये है कि जदों लोड़ पई, नास्तिक ने तो गाली निकाल दी, पर क्या आस्तिक भी गाली निकालता है? अगर आस्तिक गाली निकालता है तो उसको भ्रम है, उसको भुलेखा है कि मैं धर्मी हाँ। तू बारों बारों करदा है, इनू बगला भगती कहते ने, इनू जियो मैले बारों निर्मल कहते ने, इनू गली असी चंगियां आचारी बुरियां कहते ने, इनू मन होर मुख होर कहते ने, इनू डुअलिटी दी परसनैलिटी कहते ने, इनू पाखंड कहते ने कि तू अंदरों भुलेखा खा रहे हैं। सो असी आस्तिक नास्तिक सैमीनारी शब्द पढ़िया सी, तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भगत नहीं उपजी भूखै दाना दीना। अन पावनी भगत होंदा बई तू हर वेले स्टेबल नहीं रहिंदा। नास्तिक तो गालां भी कढ़दा है, नास्तिक बेईमानी भी कर लैंदा है, नास्तिक उच्चे नीवें बोल भी बोल लैंदा है, नास्तिक लोगों को घूरी वट के भी देख लैंदा है, नास्तिक बच्चों को गुस्सा भी कर लैंदा है, नास्तिक रिक्शे वाले को भी गुस्सा कर लैंदा है, नास्तिक पत्नी को भी गुस्सा कर लैंदा है, नास्तिक अपने बच्चों के अगे भी गुस्से नाल बोलदा है, नौकरानी को भी गुस्से नाल बोलदा है नास्तिक। पर आस्तिक भी ये काम करता है। अगर आस्तिक भी अपने पति या पत्नी से भैड़े बोल बोलता है,
अगर सो कार्ड तथा कथित आस्तिक भी गुरुद्वारे में जाके भाई साहब से गुस्से से बोलता है, अगर तथाकथित आस्तिक भी किसी को गाली निकाल सकता है, निकालता है, हेरा फेरी कर लेता है, तो वो आस्तिक नहीं है, भुलेखा है उसको। सो जे साडा काम क्रोध लोंकार सद्या नहीं ना, असी आस्तिक नहीं हाँ। सो गुरमति च आस्तिक नास्तिक कॉन्सैप्ट नहीं है। गुरमत कहती है शुभ अमल होने चाहिए ने, तेरा सुभाव ठीक होना चाहिए, वैदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट, whether you are atheist, communist और you are believer in God, monotheist या जिस किस्म का भी तू है, तू अपना लेबल जो मर्जी ला, पर तेनू रब्बी गुणा दे नाल जीना चाहिए। रब जी कौड़ा नहीं बोलते, तू कौड़ा ना बोलिया कर। रब जी किसी नू घूरी नहीं वटदे, तू ना वटिया कर। रब जी किसी नू गल नहीं कढ़दे, तू ना कढ़िया कर। सो असी जदों तक रब जी दे गुणा दे नाल नहीं जुड़े हाँ, तो असी चिंता फिकर ही चाह अज दे कॉन्टैक्स्ट विच असी बेपरवाह नहीं हाँ। सो जो भाव है बेपरवाह, भाव है किनू कहते हैं, असी ये गल नूं भी बार बार विचारना है। तुसी सब ने सुनिया है, टीवी ते साडा प्रोग्राम पिछले कम से कम 8 साल तो चल रहा है। तुसी कितने प्रोग्राम सुन ले, टेपां बनिया हुई हैं, बाहर तुहानूं पेन ड्राइव भी मिल जाएगी, CD मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएगियां। असी इस गल नूं बार बार रिपीट किया है, इस नोशन नूं तोड़न वास्ते। नोशन की बनी हुई है? नोशन ये बनी हुई है, दाते दात रखी हाथ अपना, जिस पावे तिस देई। भगवान ने अपने हाथ में दात रखी हुई है, जिस किसी को वो देना चाहता है उसको देता है। ए भुलेखा पाया हुआ है, ए भरम फैलिया हुआ है, ए अंधविश्वास फैलिया हुआ है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ पता की है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ संत पैदा होंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी, सो काट तथा कथित ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मचारी पैदा होंदे ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ साधु संत पैदा होंदे ने। क्यों? ये साधु जी हैं, ये संत जी हैं, ये बाबा जी हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी है, श्रीमान 108 है। इन्होंने शादी नहीं कराई है, स्त्री को हाथ नहीं लगाते, ये बिजनेस कोई नहीं करते, ये पैसे को हाथ नहीं लगाते। इनको भगवान ने दात दी हुई है, बड़े पोचे हुए हैं। हम तो पापी हैं, हम तो ग्रस्ती हैं, हम तो बच्चों में मोह रखते हैं, तो हम तो भगवान जी तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए यह वाला ख्याल फैलाया हुआ है कि दाते दात रखी हाथ अपना, जिस पावे तिस देई। रब जी ने दात अपने हाथ रखी हुई है, किसी किसी नूं चुन चुन के जिन्हों रब जी पसंद करते हैं उन्होंने देंदे ने, जिन्हों पसंद नहीं करते उन्होंने नहीं देंदे ने। डिस्क्रिमिनेटिव रब जी तो होंदे नहीं, पर यह किहड़ी गल असीं बना लई। सो उस शब्द के अर्थ रहाऊ मुताबक जे समझो तो रहाऊ नूं हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुर दाता मेल मिलाओ, हर नाम देओ आधारे। रहाऊ है शब्द का। कौन कह रहा है हर जियो कृपा करो तुम प्यारे? मेरा मन। गल उस मन दी चल रही है। दाते दात रखी हाथ अपना, जिस भावै, जिस दा मतलब है जिस दे मन नूं ये वाली दात पसंद आवे। जिस भावै, जिस दे ससे नूं औंकड़ लगी है, तिस देई, उसनूं दे दिंदे हन। किसनूं? जिसनूं दात पसंद है। जिन्हां नूं नहीं पसंद वो आणगे, मत्था टेकणगे, गोलक विच पैसे पाणगे, पिछों परिक्रमा करके चले जाणगे। नालायक बच्चा भी तो स्कूल विच इंज ही करदा है। जदों उहदे मम्मी पापा पूछते हैं और तो बच्चे पास हो गए, हमारा बच्चा पास नहीं हुआ, मास्टर जी क्यों नहीं पास हुआ? तब मास्टर कहता तुम्हारा बच्चा स्कूल में आता है, बड़े प्यार से आता है, आके मेरे टेबल के आसपास से घूम के घर चला जाता है, पढ़ता कुछ भी नहीं है। इस तरह तो असीं भी करते हैं। आए, मत्था टेकिया, परिक्रमा की, घूम घुमा के घर चले गए, लंगर खा लिया। दात ते तुहाडी पसंद ही नहीं मैनू। तुहाडी दात की गल की जा रही है, तुहाडी सुमत लैके मैं अपनी दुरमत दूर करनी है। सतगुर विचों मार कढ़िया बुराइयां करदा है, तो मैं अपनी तो बुराइयां खत्म करान आया वां। मैं बुराइयां वालों तो मरन आया इत्थे, बुराइयां दा ते सिर लैके आया वां। असीं ते रावण जलदा देखिया, अपना सिर कट के कदे रखिया ही नहीं, साडा सिर भी कदे कट के रखीए। सो जो भाव है बेपरवाह का मतलब है जिसनूं बेपरवाह रब जी की मत पसंद है,
उसका मन बेपरवाह बन जाता है, ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਲਾ ਫਲਸਫਾ ਸੁਮੱਤ ਅਕਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा शाम को 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं रहना चाहिए, अंधेरा होने पे घर आ जाना चाहिए। बच्चा घर आ गया, मम्मी पापा भी बेपरवाह निश्चिंत, बच्चा भी बेपरवाह निश्चिंत। पर बच्चा कहता है मम्मी हमारे स्कूल में सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, मुझे भी जाने दो। हुण मम्मी पापा का ही फिक्र शुरू हो गया, बच्चे का ही फिक्र शुरू हो गया। पर जो मम्मी पापा बेपरवाह वाली गल कह रहे हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे ज़माना ख़राब है, रात को बाहर देर नहीं रहना है और ऐसे नहीं जाना है। बच्चा अगो दलील देता है नहीं बाकी तो मम्मी पापा मना नहीं करते हैं, आप क्यों मना करते हैं? इसका मतलब सानू वो वाली गल पसंद नहीं है, पसंद नहीं आई, बेपरवाह नहीं होए, तो की शुरू होया? चिंता, फिक्र, तौखला, डर। सो वो श्लोक असी पढ़िया, सौरह पई है कंत की, कंत अगम अथा, जितना रब जी दे मार्ग ते टुरो उतने बेअंत गुण प्राप्त होंदे ने। साडा मन कंत अगम अथा चंगे गुणा दा बन जाता है। जिस दिन साडा मन चंगे गुणा दा मालक बनता जाता है, उस दिन असी स्टैगनेंट नहीं होना। जिस वेले स्टैगनेंट हो गए, रुक गए, मन साफ होना चाहिए, इंसानियत की कमाई करनी चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, बस यही तो 3 बातें हैं। एंड 3 कह के असी अपने आप को रोक लिया। जिथे असी रुक जाते हाँ उथे स्टैगनेंट हो जाते हैं, उथे हंकार शुरू हो जाता है, उथे मैल लगनी शुरू हो जाती है। पानी मैला हो जाता है जिथे रुक जाए। जिस इंसान की ग्रोथ रुक गई है, सिक्खी की मत अनुसार वो बाणी और नहीं खोजेगा, और नहीं सुनना चाहेगा, और समझना नहीं चाहेगा। और सुना हुआ है बड़ा यार, बड़े बोलने वाले सुने, बड़ी कथावां सुनी है जी गुरुद्वारे, असी बहुत कुछ सुनिया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इंज लोग की करते हैं, बहुत सुन लिया यार, कितने शब्द सुने, कितने शब्दों के अर्थ सुने, ਇਹਦਾ मतलब स्टैगनेंट हो गए, पर बेपरवाह ना हो सके। जितना असी सीखते जावांगे उतना असी डे बाई डे स्ट्रोंग होंदे जावांगे। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब का जिहड़ा बाणी नूं रचन दा ढंग है ना, वो बेअंत है। साडा मन चंगे चंगे बेअंत गुण सीखदा है। सिर्फ एक कंप्यूटर चलाना आ गया, टेलीफोन चलाना आ गया, कार चलानी आ गई है, और मैचिंग कपड़े पाने आ गए हैं, और मेरे को परफ्यूम लगानी आ गई है, और इंग्लिश में बात करनी आ गई है, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। MA मैंने पढ़ ली है, इससे 40,000 50,000 तनख्वाह मिल जाएगी, उसे गुजारा चली जाता। कार मैंने ले लिया, बरादरी में लोग जानते ही हैं मुझे, और इससे ज़्यादा क्या करना है। बैंक अकाउंट खोलना मेरे को आता है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੰਜ रुक ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ नहीं सीखना चाहते ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ दूर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਉਥਲਾ ਉਥਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੋਪੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭਹੀ ਸੁੱਤੀ ਆਇਨ ਚਿੰਦ। ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਸੰਭਹੀ, नाती एक स्त्री नहाई, नहा के धो के तैयार हुई, तैयार होके उसने मैचिंग कपड़े पाए, श्रृंगार किया, लेकिन जदों बिलवड नूं मिलन दा टाइम आया तो सो गई। ਇਹਦਾ ਮੈਟਾਫਰ है, ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ प्रतीक दसिया। सो जदों असी श्लोक पिछले नाल रला के पढ़ रहे हैं तो पता लग रहा है कि इस श्लोक विच फोका बेपरवाह होना, बारों बारों भरमी तौर पर धर्म अपने आप को धर्मी समझना, बेपरवाह नहीं होवांगे, सो निश्चिंत नहीं हो पावांगे। पर एवें ही अपने वालों बेफिक्र होकर सो जाना, जी मेरे घर मेहमाना ने आना, बेफिक्र होकर सो गए, पर जब मेहमान आया कुछ बनाया ही नहीं सी। मेहमान आया को ओह असी तो रोटी नहीं बनाई, मैं तो सो ही गई सी। इस तरीके की साड़ी अवस्था बनती है ना। सो जदों मैं सच की मत लैण तो निश्चिंत होया होया, मीनस इग्नोरेंट,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਤੇ ਫੋਕਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਇਸੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭੇਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਇਗਨੋਰੈਂਟ। ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਬਾਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰੀਰਕ ਤਲ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣ ਕੋ ਆਓ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, 1-1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡ ਛਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਟਰਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਐਲਰੀ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਦਾਸ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਤਲਾਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ गया, ਇਹ मेरा बच्चा घर आया, बेटा हैमबर्गर खा लो, अच्छा अब तुम्हारा स्विमिंग का टाइम है, अच्छा मेरे बेटी का डांस सीखने का टाइम है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਸ ਔਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣ ਕੋ ਆਓ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਾਰੋ ਬਾਰੋ ਉਹ ਜੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਣਾ ਘਰ ਕਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਓ, ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵੰਡੀਏ ਦੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡੋ। ਵੰਡੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ 100 ਕਾਟ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
फोका फोका विश्वास रखने नाल नहीं मिलेगा जी। मन अंदर प्यार और विश्वास होना चाहिए, इंज नहीं मिलेगा। सुत्तियां मिले ना पाओ। तैनू सतगुर दी मत लैके आत्मक मन दियां अखां खोलियां पैणगियां। जीवन के हर पहलू विच तैनू अलर्ट होके जीना पेगा, अवेयरनैस नाल जीना पेगा। ते जिहड़े नहीं जींदे ने, फरीदा रही सुबेड़ी हिंग दी, उन्हां दी रही सुबेड़ी हिंग दी की हुंदा है सत्संग जी? हिंग विच स्मैल हुंदी है। साडे घरां विच किसी भोजन विच पा दो, एकदम पता लग जाता है हिंग पई है, उहदी स्मैल आती है। इस तरीके दे नाल गुरबाणी दे अंदर फ्रेजिज, मैटाफर्स या प्रतीक वरते गए हैं। जिस तरह असीं पढ़दे सी, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। साकत ऐसा है, 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 साकत ऐसा है। जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। कोने बैठे खाइए, प्रगट होए निदान। जैसी लसन की खान, जैसी लसन की खान। साकत ऐसा है, साकत ऐसा है, साकत ऐसा है। कैसा? जैसी लसन की खान, जैसी लसन की। लसन जिथे मर्जी रखो ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ आई जाएगी। जैसी लसन की खान। साकत ऐसा है, साकत मतलब जिस मनुख ਦੇ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਬੂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਰਹੀ ਸੋ ਬੇੜੀ ਹਿੰਗ ਦੀ। तेरी जिंदगी रूपी बेड़ी अंदर हिंग भरी रही, स्मैल ही रही सो बेड़ी हिंग दी। गई कथूरी गंध, गंध होंदा है खुशबू। कस्तूरी हिरन दे अंदर होंदी है। आम धार्मिक दुनिया विच कहावत है, हिरन दी कस्तूरी बड़े रोगां वास्ते काम आती है। हिरन दी कस्तूरी खुशबू होंदी है। लेकिन एक विडंबना होंदी है कि हिरन दे अंदर कस्तूरी है, वो बाहर जंगल विच लभदा रहिंदा, उहनूं किधरे स्मैल ते आ रही है। इंज असीं बाहर लभदे रहिंदे हां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਈ ਕਥੂਰੀ ਗੰਧ। तेरे कोल जिहड़े चंगे गुण ने, उन्हां दी खुशबू भी चली जाती है। दैट मीनस वी आर लूजर। जो जो अवगुणा का व्याज वधदा जाता है। सो पिछले श्लोक च वेस शिंगार बाहरों बाहरों जिहड़ी करदी सी, अपने आप नूं सुहागन समझदी सी, उहदी गल कीती गई सी, पर कथूरी दी गंध उहनूं ना मिली। जैसी लसन की खान। अवगुणा दे नाल बेफिक्र नहीं रह सकते। अवगुणा दे नाल चिंता रवेगी। सो मिलाप लई नींद तो जागना पेगा ताकि रब्बी गुण प्राप्त हो सकन। हिंग बदबो ईवल्स काम क्रोध अहंकार का प्रतीक है। अते खुशबू लाइफ च कोई मनोरथ बनाना, उस मनोरथ वास्ते जागते रहना और जाग के उस मनोरथ वास्ते चंगे चंगे गुणा का सुभाव
पकाते रहना, अपने आप को दृढ़ करते रहना। उद्यम टू मेक भाईचारक समाज। इत्थे तक मैं इस पॉइंट नूं जान के लियाना चाहता सी कि साध संगत जी, जदों असी अपना सुभाव फिक्सअप करते हाँ तो अंदर इंटेंशन पता है की होंदी है, जे मैं ठीक हो जाऊँगा ना तो समाज ठीक हो जाएगा। लेकिन जेड़े ठीक नहीं होना चाहते ने वो कहते ने समाज पैड़ा है, वो कहते ने लोकी झूठे ने, लोकी कहते ने लोकी धोखेबाज ने, मैं तो शरीफ है ही हाँ। पर गुरमत की गेम इत्थों शुरू होती है, आप सवारे मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। और असी ये भी विचार चुके हैं कि समाज किनू कहते हैं, समाज जिस तरह एक एक बूंद के नाल मिल के घड़ा भरदा है, नदी नदी नाल सागर बनता है, इस तरह एक एक मनुख नाल मिल के समाज बनता है। तो मैं समाज का हिस्सा हाँ। मैं जे अपने समाज तो बेपरवाह रवांगा, समाज का ध्यान नहीं रखांगा, तो उसकी निशानी की होएगी, मैं अपना सुभाव ठीक नहीं करांगा। सो जदों असी गुरमत नूं पढ़ते हैं, गुरमत नूं समझते हैं, तो गुरमत सानू साडे तक ही फिक्सअप नहीं रखती है, गुरमत साडा सारा समाज फिक्सअप करना चाहती है। इस करके गुरमत इस्त्री नूं बराबरता भी दिवाती है, इस करके गुरमत जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं सिखाती है, इस करके गुरमत समाज को फिक्सअप करने वास्ते जात पात की भी इक्वैलिटी कर देंदी है, भी ऊंच नीच कोई नहीं होंदी। इस सारे पॉइंट्स जदों आप असी चंगे गुणों का सुभाव बना के उद्यम करते हैं ताकि भाईचारक समाज बना सकीए, अपने वैसटिड इंटरस्ट तो खुदगर्जी तो उपर उठते हैं। जे नहीं उठते हैं तो असी अपने घरों में जो कुछ कर रहे हैं, विआह शादी तो लैके जम्मण मरण तो लैके धार्मिकता की दुनिया तो लैके धार्मिक स्थानों पर भी जो असी कर्मकांड पाखंड कर रहे हैं, वो सारा बिल्कुल यही बनया जो असी अज श्लोक पढ़िया है। सो नाती धोती असी तैयार भी होए, नहाते भी, खुशबू भी लगाई, रंगदार कपड़े भी पाए, मैचिंग कपड़े भी पाए, सवेरे कुछ होर पाए, शामी कुछ होर पाए, सारा कुछ किया। संबही का मतलब भी सिर्फ इतना होता है, बारों बारों श्रृंगार किया। लोका वे हो सुहवी सुह आवेश करी, लोका वे सूह भी वो सूह आवेश करी। ये नाल पेखी शो ना पाइए, कितने में वेश धारे। सो असी बाहरले जितने कर्मकांड धार्मिक दुनिया विच करते जा रहे हैं, वेश दिखावा पाखंड शो ऑफ परसोना लगा के धर्मी बन के माला हथ च फड़ के अंदरों बगल में छुरी मुँह में राम राम, ये जो कुछ असी करते जा रहे हैं इनू संबही कहते हैं। संबही अखर समझण वाला है, नाती धोती संबही सुती आए नचिंद। मैं अपने आप बेपरवाह होके इग्नोरेंट होके सुता होया वहाँ। फरीदा रही सो बेड़ी हिंग दी, बदबू अंदर ही रहेगी। जिदे अंदर बदबू रहती है वह धार्मिक दुनिया च भी जाके निंदा करता है, जिदे बदबू रहती है वह धार्मिक दुनिया भी जाके दूजिया डोमीनेट करता है, जिदे अंदर बदबू रहती है वह दूजिया लड़ाता है, जिदे अंदर बदबू रहती है वह अपने आप को ठीक नहीं करता, दूजिया समझदा कि बाकी सारे भैड़े मैं शरीफ हाँ। अवर उपदेश है आप ना करे। हुण मैं स्टेज पर बोली जा रहा, यदा मतलब की होया, यदा मतलब साफ है कि मैं जे अपने अवगुणों का ध्यान ना रखा तो यह साफ प्रतीक है, अवर उपदेश है आप ना करे। आवत जावत जन्म मरै, मैं पल पल आत्मक मौत मरदा हाँ। नाती धोती संभी सुती आए नचिंद, रही सो बेड़ी हिंग दी, बदबू रह गए गई कथूरी गंध। गंध मतलब कस्तूरी दी खुशबू चली गई। कस्तूरी दी खुशबू नहीं मिली, रब्बी गुण नहीं मिले, रब्बी गुण नहीं मिले तो असी बारों बारों। सो असी ये श्लोक पढ़ांगे, लोकावे हों सूह भी सूह आवेश करी, मैं बारों धर्मी बन गया। वेसी शो ना पाई है, कर कर वेश रही, मैं तो वेश ही धारण करती रह गई। नानक तिन्नी शो पाया जिन्नी गुर की सिख सुनी, जो सतगुर दी मत नाल सुनते ने।
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਡਾ ਵੇਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਓੜਨੀ ਓੜਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਤੀਏ ਇਨ ਬਿਦ ਕੰਤ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਹਾਣਾ ਧੋਣਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।